डज नॉट हैव, उसको हम क्या कहते हैं? तो दैट इज कॉल्ड रिसिपिएंट स्ट्रेन या फीमेल। ठीक है, तो उसको रिसिपिएंट या फीमेल स्ट्रेन भी हम बोल सकते हैं। क्लियर? तो इसलिए ये एक फैक्टर है। तो ये क्या करेगा? ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बना देगा। द ट्यूब helps to send the replicated DNA from the male to the female in conjugation. Okay, so this tube helps to send the replicated DNA from male to female in conjugation. ठीक है, तो ये हमारा है आपका क्या, एफ स्पेक्टर। उसके बाद जो सी है, इसको मैं बार बार कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली मत हो, ये नहीं होता है, हो जाता है दोबारा। फाइन, तो उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर हमारा क्या है? आर जीन या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिलेक्टेबल मार्कर जीन। भाई ये तुम्हारे लिए है, उसके लिए थोड़ी है, उसके लिए तो ये गड़बड़ है। तो इसलिए तमें जब ता कथा कहूथुब आप बोलेंगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जब हमारे बात करेंगे तब बोलेंगे आप सिलेक्टेबल मार्कर। तो ये क्वेश्चन आता है वाई प्लास्मिड, वाई वी शुड यूज प्लास्मिड जबकि हम जीनोमिक डीएनए यूज कर सकते थे। तो ये उसका आंसर है। ठीक है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। चलिए, तो इसीलिए दिस जीन confers the particular strain of bacteria resistance against some or the other antibiotics. It is not a constant parameter. Okay, so genes for different antibiotics are present, okay, for present in different strains of bacteria. ठीक है, some Yes, sir. some may have more than one R genes. Okay, some may have more than one R genes. Some plasmids may not have R genes at all. तो इसलिए इसके बारे में आप कुछ जनरली नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये वेरिएबल है। ठीक है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट सम ऑफ द अदर एंटीबायोटिक्स। ओके, तो इसमें हम एग्जांपल लिख सकते हैं। एग्जांपल टेट आर, ओके, टेट आर confers क्या, रेजिस्टेंस अगेंस्ट टेट्रासाइक्लिन। ओके, इसको हम कॉपी कर देते हैं। ओके, कॉमा, whereas AMPAR confers against ampicillin। ठीक है, एटसेट्रा। तो इसीलिए ये आपका कुछ भी हो सकता है। नाउ this gene can be used
by us to locate the क्या recombinant bacteria. Okay, this can locate the recombinant bacteria. Bracket re bacteria with plasmid having our desired gene of interest. ठीक है, तो ये हम लोग अपने मतलब का यूज कर सकते हैं. Fine. So this gene can be used by us to locate the recombinant bacteria. Okay, in from a colony of bacteria. Okay. Now इसमें दो केसेस हो सकते हैं. Now if the gene is added within the R gene, तो ये एक केस है कि नहीं? तो this is one case. If the gene is added within the R gene, okay, if the gene of interest is added within the R gene, तो क्या होगा? So in this case, कलर चेंज कर देते हैं. Okay, in this case, the bacteria will क्या survive ना not survive? Not survive. Not survive in the medium containing the antibiotic. समझ रहे हो? Hela, if in this case the recombinant will not survive in the medium containing the antibiotic. Okay. In this case the bacteria, recombinant bacteria इसको हम लोग बोल देंगे. Recombinant bacteria will not survive in the medium containing the antibiotic. And case 2 ले लेंगे, कॉपी करके पेस्ट कर देंगे. तो केस 2 क्या है भैया? If the gene of interest is क्या not added within the R gene. So in this case the recombinant bacteria will survive in the medium containing the antibiotic. So once the antibiotic is added to the culture medium, okay, other bacteria will die, whereas our recombinant bacteria will survive. Okay, तो ये हमारा कंसेप्ट. ठीक है जी. ओके, सो इसीलिए हम इसको सिलेक्टेबल मार्कर जीन कहते हैं. तो इसलिए सिलेक्टेबल मार्कर जीन कहने का ये एक उद्देश्य. चलिए, तो ये हमारा 3 मेन जीन है. उसके बाद एक फैक्टर होता है दैट इज कॉल्ड कॉल जीन. ओके, तो कॉल जीन. Okay, so this is called, okay, this is called gene या cholecynogenic factor. Okay, cholecynogenic factor. इसका मतलब क्या है? This gene produces, okay, this gene produces proteins that
are secreted by one strain of bacteria and does not allow other strains of bacteria to survive in that region. Okay, so this gene produces proteins that are secreted by one strain of bacteria and does not allow other strains of bacteria to survive in that region. Okay, for example, symbiotic bacteria in the vagina actually are beneficial as they are harmless and will not allow any other bacteria to survive there. Okay, survive there क्या may be क्या harmless और harmful, कोई मर्जी हो वो यहाँ नहीं बचेंगे. ओके, तो मे बी हार्मलेस या हार्मफुल. अंडरस्टूड. सो दिस इज द कंसेप्ट. तो इसलिए अगर एक बैक्टीरिया है तो वो दूसरे किसी भी बैक्टीरिया को डेवलप करने नहीं देगा ना. इसलिए प्रोस्टिट्यूट्स लोग क्या करते हैं, ये लोग रैपिड डाउशिंग करते हैं, एंटीबायोटिक से क्लीन करते हैं अपने बॉडीज को आफ्टर एवरी सेक्सुअल इंटरकोर्स. इससे होगा क्या, इससे होता ये है कि जो आपका डाउशिंग से एंटीबायोटिक से आपके फ्रेंडली बैक्टीरिया भी मर जा रहे हैं, है कि नहीं. सो योर फ्रेंडली बैक्टीरिया ओके आर ऑल्सो डाइंग, सो इट शुड बी अवॉइडेड. ठीक है जी. सो इसीलिए मैंने अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो आप बेटर जिएंगे. ओके, बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड बाय योर ओन फ्रेंडली बैक्टीरिया. ठीक है, इसको कट करके हम उस पेज में डाल देंगे. ओके, पहले उसको पढ़ लें फिर इसको डिस्कस करेंगे. और क्या हो गया. तो दिस इज समथिंग विथ रेस्पेक्ट टू कॉलिसिनोजेनिक फैक्टर. उसके बाद जो है ई है निफ जीन्स. ओके, सो दिस इज कॉल्ड निफ जीन्स. फाइन, निफ जीन्स या उसको हम लोग कैपिटल एन लिख सकते हैं. तो निफ जीन्स का मतलब क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन्स. नाइट्रोजन. हाँ, सो नाइट्रोजन फिक्सिंग genes. Okay, so such bacteria can fix atmospheric nitrogen into the soil. Okay, into the soil. तो समझ रहे हो. तो इसलिए ये आपका जो है advantages of क्या है. So these are the advantages of what, बोलो. These are the advantages of plasmid as vector. plasmid as a vector. Now उसमें एक और एडवांटेज है, वो इनडायरेक्ट एडवांटेज है. उसका मतलब क्या है, जब हम लोग प्लास्मिड ले रहे हैं तो वो क्या होगा, इफ यू आर यूजिंग प्लास्मिड, तो अब आपने क्या किया कि माने उसमें जो जीन ऐड करोगे उससे होस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता है. पर अगर हम जीनोम में डाल दें एंड वो मर गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे. समझे कि नहीं.
इसीलिए इन ऑर्डर टू एंश्योर that it does not affect the survival of the bacteria, तो हम लोग जानबूझ के क्या करते हैं, हमने जानबूझ के उसको कुछ नहीं छेड़ा, जैसा है वैसा ही छोड़ दिया। अंडरस्टूड? सो दिस इज द कंसेप्ट। तो अब हम लोग चले जाएंगे क्या, ये हमारा प्लास्मिड का कंसेप्ट है। तो इसीलिए इन केस ऑफ प्लास्मिड्स आप ऑल समय याद रखेंगे कि ओके, तो सर ये इतना सारा एडवांटेजेस फीचर्स है हमारा प्लास्मिड के साथ ना। उसके हम एक और चीज लिख देंगे दैट इफ द gene of interest, okay, if the gene of interest was added to the genome of the bacteria, okay, bacteria, and due to which the vitality of the bacteria was questionable. Okay, so if the gene of interest was added to the genome of the bacteria, okay, bacteria, and due to which the vitality of the bacteria was questionable, okay, it could have totally affected our experiment, है कि नहीं? तो इसीलिए हम लोगों ने उसका जो जीनोम को छेड़ना ठीक नहीं समझा, क्योंकि अगर उससे मर जाए तो ये लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इसीलिए अगर आप प्लास्मिड में डालते हो तो ये होगा ना। एक और ये सब मैंने अनजाना एडवांटेज है, प्लास्मिड्स are small in size. So entire plasmid can be copied and delivered to the female strain during conjugation, as it always takes it always plasmids are small in size as it always as most of the time, ऐसा लिख देते हैं, as most of the time क्या होता है, conjugation is for a short duration, okay, for a short duration. In this short duration, the entire genome could not have been duplicated. समझ रहे हो? तो प्लास्मिड छोटा सा है, उसको डुप्लीकेट करने के लिए कम समय चाहिए, एंड वो फटाफट हम डुप्लीकेट करके उधर भेज देंगे, फाइन। बट जीनोम के पीछे अगर पड़े तो वो होगा नहीं। क्लियर? तो ये जो दो पॉइंट्स हैं ये अदरवाइज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए, तो ये सब कारण है प्लास्मिड्स के, ओके। तो अब हम लोग इसके बाद नोट लिखेंगे। Now, so the next heading is discovery of plasmid. Okay. तो डिस्कवरी ऑफ प्लास्मिड, तो ये अब हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ प्लास्मिड का डिस्कवरी किसने किया, ओके, सो दैट वी विल डिस्कस, एंड कहां से हुआ, ओके।
चलिए, सो जो वर्ड प्लास्मिड है उसको कॉइन किया था किसने? जोशुआ लेडरबर्ग ने। ओके, सो ये सब ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, ये सब भी थोड़ा स्टेबलाइज हो सकता है। ओके, so the word plasmid was first coined by Joshua Lederberg, okay, in 1952. जोशुआ एंड एस्थर लेडरबर्ग किस लिए फेमस हैं? बोलिए, फॉर योर रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट। तो he used it to describe any extra chromosomal hereditary element. Okay, now Lederberg first used the term in a paper he published describing some experiments he and his graduate student Norton Zinder. तो ये जिंडर एंड लेडरबर्ग का एक्सपेरिमेंट कहलाता है। नॉर्टन जिंडर conducted on Salmonella bacteria and its virus P22. ठीक है, तो इन दोनों में वो लोग काम कर रहे थे, जिंडर एंड लेडरबर्ग। ओके, तो जिंडर एंड लेडरबर्ग फेमस है। उसी तरह से आगे बाद में आए क्या? लेडरबर्ग एंड लेडरबर्ग। लेडरबर्ग एंड लेडरबर्ग कौन कौन थे? जोशुआ एंड एस्थर लेडरबर्ग। तो ये लेडरबर्ग सिबलिंग्स हैं, तो उन दोनों ने फिर काम किया। तो they are basically associated with what? So they are basically associated with replica plating experiment. तो वो जो है वो रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट के साथ एसोसिएटेड है। चलिए, सो नाउ लेट अस गो टू आवर शेयर वन नोट इधर। ओके, सो जोशुआ एंड एस्थर लेडरबर्ग उन्होंने ये चीज डिस्कवर किया है। थोड़ा हम बड़ा कर सकते हैं, व्यू कैन बी एनलार्ज्ड। ठीक है ना, उसके बाद जो दिस पीपल व्हाट दे डिड, तो उसके बाद जो हम लोगों ने देखा था इन एनसीईआरटी क्या लिखा हुआ है, दैट उसका जो पहला है, ओके, जो मैंने जो फर्स्ट प्लास्मिड, ओके, वो किसने ढूंढ कर निकाला था? सो दिस इज आवर एनसीईआरटी टर्मिनोलॉजी, दैट हु अडैप्टेड या हु डिस्कवर्ड इट। तो अकॉर्डिंग टू आवर, आप सबका प्यारा हमारा न्यारा एनसीईआरटी, तो बताइए कौन सा? और कौन आता? मतलब एग्जाम भी दे दिए, एग्जाम भी दे दिए एंड ऐसे फिर बन नहीं रहा, फिर तो घोटाला बात है ना। बताओ अभिषेक, दिस गिवन इन योर बुक, किसमें डिस्कवर हुआ एंड क्या किया? बोलो 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 सर। सैल्मोनेला टाइफेरियम। हाँ, देख देख के बोलने से कैसे होगा? नहीं सर, हिडन है। हाँ वो आप जो नेम पर चल रहे थे। हाँ, तो बोलो कौन सा? साल्मोनेला क्या? टिफरनियम टाइफेरियम। बताइए बताइए। TIMPHIRIUM। तो ये आपका फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड है। ओके, जो पहला रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड, मतलब हु मेड द फर्स्ट प्लास्मिड। ओके, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम। एंड इस पे मेरा नोबेल प्राइज अच्छी रे, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसके लिए देयर इज नोबेल प्राइज, यस, स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। तो ये दोनों उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। फाइन, सो आप नीचे आ जाइए। चलो
Yes. So the construction of the first recombinant plasmid, okay, by Stanley Cohen and Herbert Boyer. Okay, तो ये याद रखना. The construction of first recombinant DNA emerged from the possibility of linking a gene encoding antibiotic resistance with a native plasmid autonomously replicating circular extrachromosomal DNA. Okay, देखो मैंने ये जिसमें डाल रहे थे उसमें उनको सब कुछ मिला बट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं था, है कि नहीं? तो लाइक दैट. तो स्टैनले कोहेन and Herbert Boyer accomplished this feat. थोड़ा बड़ा करके शायद आएगा. Yes. Accomplished this in 1972 by isolating antibiotic resistant gene by cutting out a piece of DNA from plasmid which was responsible for conferring antibiotic resistance. ठीक है, तो ये है हमारा Salmonella typhimurium, Stanley Cohen, ओके, हर्बर्ट बोयर, पॉल बर्ग, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं प्लास्मिड के साथ, है कि नहीं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ओके, को ये ऐड कर रहे थे. ठीक है, तो इसीलिए दिस इज द कंसेप्ट. तो सबसे पहली बार वो किसने बनाया? नाउ उसके बाद आपके जो अलग अलग टाइप्स ऑफ प्लास्मिड्स हैं वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं. नाउ डिस्कवरी ऑफ क्या? रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड. ठीक है, नाउ उसके बाद ये जो पेयर है कोहेन एंड बोयर, तो उनके साथ दूसरे लोग भी मिले. ओके, एंड अल्टीमेटली द what was produced? The first recombinant plasmid. तो वो क्या कर रहे थे मैं बता रहा हूं आपको. उन्होंने 100 मिलियन रॉयल्टी में पाया है रे बाबा. ना उसके बाद पॉल बर्ग, हम लोगों ने पॉल बर्ग का कंट्रीब्यूशन पढ़ा था. इसको बुलेटिंग कर देते हैं. ओके, so this is 14 bold. Now Paul Berg, okay, from Stanford University, okay, biochemist at Stanford, who was among the first to produce recombinant DNA molecule in 1972, okay, wrote a letter shortly afterwards along with 10 other researchers to the journal Science. Okay, ये Science को दिया. In the letter they asked National Institute of Health, जो कि ये बहुत सारा काम करता है abroad, to regulate the use of recombinant DNA technology, and mainly they asked scientists to halt most recombinant DNA experiments until they best understood whether the technique is safe. These concerns eventually led to the 1975 Asilomar Conference, where 100 scientists gathered to discuss the safety of manipulating DNA from different species. The meeting resulted in the set of NIH guidelines. तो ये सब guidelines बना था, तो ये हमें उतना अभी कोई जरूरत नहीं है. इसको हम इसको हटा सकते हैं. We don't need इसको, हमको गाइडलाइन लेके क्या करना है कि नहीं? तो इसीलिए we don't need that guideline story. Now actually इसीलिए जो आपका जो बने बोयर एंड कोहेन के अलावा और किसने काम किया था एक बार देख सकते हैं. नोबेल प्राइज रिलेटेड एक्टिविटी को एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे. इसको किस तरह का डीएनए बोलते हैं? काइमेरिक डीएनए. ओके,
काइमेरिक डीएनए। जी सर। तो काइमेरिक डीएनए जो है ये काम था ना। इसका स्टोरी बहुत सुंदर है एक्चुअली। तो ये हम एक नोट लिखते हैं। So the idea of recombinant DNA was first proposed by Peter Loban, a graduate student of Professor Dale Kaiser in the biochemistry department of Stanford University. ठीक है, तो उन्होंने इसका प्रपोजिशन दिया। बिकॉज जनरली क्या होता है मालूम है ना, स्टूडेंट्स लोग ही काम करते हैं, बट आपका फायदा उठा लेते हैं टीचर्स। बिकॉज टीचर्स को लोग जानते हैं, स्टूडेंट को कोई नहीं जानता। तो इसीलिए the advantage is taken by the teachers. The first publication describing the successful production and intracellular replication of recombinant DNA appeared in from Stanford. वही किसने? पॉल बर्ग का टीम ने उसको डिस्कस किया। In 80 पॉल बर्ग जो था तो उनके पेपर्स आए। In 1980, Paul Berg, a professor in the biochemistry department and an author of one of the first papers. Okay, तो वो पहले पेपर्स का ऑथर को क्या मिला? नोबेल प्राइज। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि 3 ग्रुप था, तीनों ग्रुप के एक एक बंदों को नोबेल प्राइज दिया गया। ओके, सो ओके, first paper was awarded a Nobel Prize in Chemistry for his work on nucleic acids with particular regard to recombinant DNA. Okay, Werner Arber, Hamilton Smith and Daniel Nathans shared, वो तो chemistry वाला उनको मिला, इनको मिला medicine and physiology वाला, Arber, Smith and Daniel Nathans, okay, for the discovery of restriction endonucleases. तो ये जो नोबेल प्राइजेस है हमारा बायोटेक्नोलॉजी फील्ड को दिया गया। ठीक है, ओके, हो गया स्टैनफोर्ड, फाइन, तो वी डोंट नीड टू कलर इट। चलिए, तो ये आपका आ गया। तो इसलिए एक तरफ से एंडोन्यूक्लियस पे काम चल रहा था एंड दूसरे तरफ पे उस पे काम चल रहा था। नाउ ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था उसका पेटेंट ले लिया 1980 में एंड लेकर उसको बेच दिया गया। ओके, द पेटेंट वाज टेकन बाय स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, है कि नहीं? तो बेसिकली क्या होता है, पेटेंट ले लेने से उसका जो भी कोई यूज करेगा उसका रॉयल्टी आपको मिल जाएगा। अंडरस्टूड? तो रॉयल्टी यू विल गेट विदाउट एनी टेंशन। So that is why it is very important, क्योंकि आप उसको बेच नहीं सकते ना प्रोडक्ट को, तो बेचेगा कोई इंडस्ट्री। तो इसको हम रेड कर देंगे। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अप्लाइड फॉर द यूएस पैटेंट ऑन आरडीएनए, लिस्टिंग द इन्वेंटर्स एज हर्बर्ट वोयर एंड स्टैनले कोहेन। मैंने उन्होंने पॉल बर्ग का नाम यूज नहीं किया। दिस पैटेंट वाज अवॉर्डेड इन 1980। द फर्स्ट लाइसेंस ड्रग generated by using was humulin, human insulin, humulin, developed by Genentech and licensed by Eli Lilly and Company। इसका काम हम पढ़ेंगे। ओके, वी विल बी स्टडिंग। ये जो काम है एक्चुअली वही हो रहा है, फाइन। सो ये ह्यूमुलिन है, तो जिसका जो कर्ता धर्ता कौन है, तो कर्ता धर्ता आपके कोहेन एंड वोयर है। बट पॉल बर्ग वाज नॉट सेटिस्फाइड, तो फिर उन्होंने जो एसिलोमर कॉन्फ्रेंस किया एंड बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्ट कर दिया इसके एक्टिविटीज को। ठीक है, so that is why a lot of restriction was done for recombinant DNA technology, and we will study a lot about it. Okay, so because ये जो modern biotechnology is very very unique. ओके, तो ये हमारा जो बेसिक एक्टिविटी है। Yes, sir. तो विथ रिस्पेक्ट टू डिस्कवरी ऑफ द प्लास्मिड एज ए वेक्टर। नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट एक्टिविटी है
ये है, तो इसको मैं आपको डायग्राम को डिस्कस कर दे रहा हूँ, इसको बार बार हम भगा रहे हैं बेचारे को। तो इधर हम एक इस पेज को, ही कौन सा है, मेन पेज है ना, इसका एक सब पेज ऐड करेंगे। चलिए, सो दिस इज क्या, डिजाइन प्लास्मिड्स। ओके, तो डिजाइन प्लास्मिड्स के बारे में हम पढ़ेंगे इसके बाद। तो यहां आप देख रहे हैं, सो ये आपका अलग अलग एक्टिविटी है। सपोज ये एक डीएनए है, ये हमारा टारगेट जीन है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लेकर उसे काट दिया। तो वी गेट द टारगेट जीन एंड दिस टारगेट जीन हैज टू बी इंसर्टेड इन ए प्लास्मिड। तो वी हैव टेकन द सेम एंजाइम एंड कट द प्लास्मिड। और जैसे ही प्लास्मिड को काटा हमने, तो अब these are sticky ends। स्टिकी है। ओके, दिखाने वाला क्या दिखाता है कि स्टिकी का मतलब एजी, बट एक्चुअली हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टिकी का मतलब ओनली एजी नहीं होता, स्टिकी का मतलब ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो अगर बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री है तो वो आराम से स्टिक कर जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड रिकम्बिनेंट प्लास्मिड। तो इसीलिए recombinant DNA is also known as chimeric DNA, okay, as it has DNA from more than one organism. Okay, Pandit? It has DNA from more than one organism. Okay, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, काइमेरा लाइक स्फिंक्स, मरमेड, यूनिकॉर्न, है कि नहीं। तो ये लोग सब क्या हैं, these are chimeras, चाइमेरा नहीं, काइमेरा। So these are called chimera। तो समझ में आया। तो इसमें एक से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स का बस डीएनए है, तो दैट इज व्हाई इसको हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। ओके, तो देख रहे हो, ये सब चीज भी हम कर सकते हैं। अब हम चले जाएंगे डिजाइन्ड प्लास्मिड्स। तो नाउ व्हाट इज डिजाइन प्लास्मिड्स एंड व्हाई डिजाइन प्लास्मिड्स। तो नेचुरली occurring plasmids, okay, may have many, okay, may have many lacunae, okay, may have many lacunae, माने बहुत से उसमें गड़बड़ हो